arithmetic progression, unit 1 of block 2. And I told you its formula also, basic formula to obtain nth number of the series, that is an equal to a0 plus n minus 1d. What is n? Can you tell me? Number of terms. Number of terms. Very good. And what is d? What is d? Difference between two numbers. Common difference. Okay. Good. So you remember. Good morning, ma'am. Okay, so now I'm presenting my screen and we will be seeing other properties of arithmetic progression and geometric progression also. Okay. Is it visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's see another example. We have to find arithmetic progression. This is arithmetic progression series already given to us, and it is saying to find 18th, 23rd, and nth term. I think we did it last time. Did we do this question last time? I remember this one we have done already. This also we did. Okay, so arithmetic progression series always look like this. Whenever the first term is given to you, like if I'm giving, if first term A0, first term is shown by A0, it is given to me as 3, and some D is given to me already, that is 2. So how I can find the whole arithmetic series using these two things? I need only these two things to find a arithmetic series. What? First term is 3, we already know. And what is the common difference? 2. So I will add 2 to 3 and I will get the next term. Again, I will add 2 to 5 and I will get the next term. Again, I will add 2 to 7 and 2 to 9 and so on. I will get my arithmetic series from only this information. This is enough information. Okay. So whenever I need to find an arithmetic series, I only need the first term and the difference. So let's see the difference between the two arithmetic series, how they have explained the difference. Suppose rth term is first a0 plus r minus 1 into d minus sth term, that means a plus s minus 1 into d. Whenever we are going to denote nth term or sth term or rth term, we always use this formula. They have just found simplified it, and this is the final formula. Whenever we subtract one arithmetic series from another, we have to subtract the sizes and into d. Okay. You can note down this formula. मैम Yes. ये R और S का मान क्या है, मतलब है क्या? R and S are the sizes of arithmetic series. This is of size R. This is of size S. Suppose I have two series. One is rth term, yani ki a 18th term minus, if I want to subtract something like a 15th term. Yes, ma'am. This is equivalent to saying 18 minus 15 into d, whatever is the common difference of both the series. मैम मतलब इसमें जो d है वो सेम रहेगा? हाँ जी. Okay, this is how we subtract two terms in one arithmetic series. These are the subtraction of two terms. One is the sth term and one is the rth term. Rohan, stop annotating. Sorry, ma'am. Next is, let's see one example. Yes. ये जो 18 में 15 गया 3 आया,
हाँ जी, into D. ये R है या S है? फर्स्ट वाला R है, सेकंड वाला S है। अच्छा, और ये डिफरेंस नेगेटिव भी निकल कर आ सकता है, जरूरी नहीं कि तो जो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। निकला वो क्या है? हाँ जी, जो रिजल्ट निकला है 3, वो क्या है? अभी तो मैंने सिर्फ आपको पुट करके दिखाया है, इसका क्वेश्चन हम अच्छा, करेंगे तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट। ठीक है, समझ गया। This is just a formula. You just note down this formula I'm saying. Okay. So we are going to do some more questions so you will understand where this formula is applied and how it is applied. Next is which term. It is saying which term of arithmetic progression. This series is in arithmetic progression. We have to find out the term which is 132 more than 54th term. This is the question on this, which will be 132 more than. Now, which term it is asking? So we are supposing let that term be an. An is a term which is more than 54th term by 132. Okay. Is this statement clear? This statement is given inside the question only. We have to just write it in expression. Clear. Okay. So arithmetic progression is given 3, 15, 27, 39. We all know that D remains the same for arithmetic progression. And what is the D here? Second term minus first term. What is D? 12. D is 12. Okay. So what formula we will apply from above? AR minus AS, that means N minus 54 into D. What is D? 12 equal to 132. So we have got, we can easily find the value of N from here. Okay. Just open the bracket, multiply 12 and you can get the value of N. Is it clear? One more interesting question is there. This is important example. Please mark it as important. Example number 4. It is saying if the pth term of AP is Q. I think I did it last time. I have done it last time. Okay, let's see. If pth term is equal to Q, it is saying, and qth term is P, it is saying. Show that rth term is this. Okay. And second, what is the value of AP plus Q? Okay. So in order to find the rth term, what we are doing, we already know that AP minus AQ means AP is Q and AQ is P. Okay, so this will be reversed. This is written wrong here. It should be Q minus P into D. Q minus P into D. But the formula, what is the formula according to AP minus AQ? AP minus AQ is P minus Q into D. So this is P minus Q into D. Okay. So D will get cancelled both the sides, and what we will get? What we will get? Sorry, here D should not be there because AP is Q and AQ is P. वो सही लिखा हुआ है उसमें. हाँ, but it is not written D. It should be written this side. So this is our D. What is our D? Q minus P upon P minus Q. P minus. If we take out minus common, so this will get cancelled and answer will be minus 1. Minus is common. Okay. And next it is asking what is AP plus Qth term. AP plus Q, what is that? What is AP plus Q? Is equal to first term, A0th term plus P plus Q minus 1 into D. That is the term na? P plus Q minus D. Minus 1 into D. That is the formula na?
For that we need A0 also. Okay. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Present, ma'am. So find out AP plus Q. I'm not saying anything. I'm waiting for you to find A plus Q, AP plus Q. Yes. Yes. Done. मैम फोर्थ की ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना मैम, ये एक बार समझा दो ये कैसे हुई? This one. यस Which मैम, one? लास्ट वन आर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वाली जो है। So let R is equal to P plus Q. Okay. So A P plus Q. We have to find out P plus Q statement. Minus A P, or you can take Q also here. So it Ma'am, is saying R क्या है यहाँ पे? let R is equal to P plus Q. So AR minus AP. AR minus AP according to the formula, it should be R minus P into D. R minus P into D. What is D here? Minus 1. Minus 1. Okay. So this is minus R plus P. This is AR minus AP. Okay. So AR, we need AR. We need to find AP plus Q. AR is AP plus Q. Okay. So AP will go that side. AP plus P minus R. Is it fine till here? Hello. यस मैम, यहाँ तक तो आ गया आगे। यहाँ तक आ गया। अब Yes, AP ma'am. क्या है? AP Q है, गिवन है ना हमें। AP is Q and AQ is P. ये Q है, this is Q plus P minus R. Okay. यस मैम, P plus Q minus R. So here this side, what is AP plus Q? What is AP plus Q? Tell me. What is AP plus Q? Only one step is there. AP plus Q is equal to Q plus P. And now I am writing the original value of R. मैंने R क्या suppose किया था? P plus Q suppose किया था. यही किया था ना? तो मैं R की जगह पे P plus Q लिख दूंगी. आंसर क्या हो गया? 0. 0. Okay.
ये Clear, समझ ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am. ये नोट डाउन कर लो, और अगर बुक का समझ आ रहा है देन इट्स ऑल्सो फाइन। कर लिया मैम। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 सिमिलर है, ये आप खुद कीजिए। शो दैट ए m प्लस n इज इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है m प्लस nth टर्म AP की 0 है, 0 निकल कर आई। ठीक है, ये आप खुद ट्राई कीजिए, लेट मी नो। ये ऊपर वाला क्लियर है सबको? मैं इरेज कर दूं या आप नोट डाउन कर रहे हो? मैम यस हेलो। यस यस। यस मैम, यहाँ पे आपने लिखा ना r इक्वल टू p प्लस क्यू, तो यहाँ पे r क्या है? r कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है, हमने उसको p प्लस क्यू पुट कर दिया। ओके आप नहीं भी पुट करोगे तब भी ठीक है। ओके। मैम इसमें जो लास्ट लाइन है इसमें p प्लस क्यू जो है a के साथ है, वो तो एंड टर्म है, तो एंड टर्म में इसकी तो इक्वेशन a प्लस p p प्लस क्यू और इंटू डी होगी, तो d की वैल्यू -1 है, तो यहाँ नहीं पे नहीं, p प्लस क्यू की जगह रुको, a कैसे आया? एक मिनट, वेट वेट वेट। p प्लस ये क्यू। AR माइनस AP क्या होता है? AR माइनस AP क्या होगा? ये ऊपर क्या था? AR माइनस AS था, नीचे AR माइनस AP है। ये इंटू डी, R माइनस P इंटू डी, डी मेरा क्या निकल कर आया था? -1 हियर। तो मैंने -1 पुट कर दिया डी को, यस मैम, वो तो और वो पुट करने के बाद मेरे पास -R प्लस P हो गया। मैम मैं सबसे लास्ट वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, जो 3 डॉट वाली है ना, वो एक बार समझा दो, वो समझ ये नहीं वाली, आई। ये वाली यस मैम, लास्ट में जो 3 डॉट वाली है। 3 डॉट है, ये तो माइनस है। मैम हैंस वाली। मैम ये है एग्जांपल ना, 5 के ऊपर जो लाइन लिखी है वो। ये वाली कह रहे हो? ये मैंने यहाँ लिखी है ना, ये लिखी है, देखो AP प्लस क्यू, AR की जगह पे, R की जगह पे मैंने P प्लस क्यू वापस से पुट कर दिया। मैंने R को यही सपोज किया था ना, लेट इट बी P प्लस क्यू ऊपर, तो मैंने R की जगह P प्लस क्यू लिख दिया। Q प्लस P मुझे ऑलरेडी मिल रहा था, -R की जगह पे मैंने वापस से P प्लस क्यू पुट करा और देखा कि ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब क्लियर है? हेलो? यस मैम। ओके, will you do one question? Just it will take just 2 minutes. मैं an लिख रही हूँ इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन n प्लस 4। ओके, मुझे 18th टर्म बताओ इसकी। आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है। ओके, फाइंड आउट द 18th टर्म। क्या निकल कर आएगी? n की जगह पे 18 पुट कर दो सीधा, आपको 18th टर्म मिल जाएगी। an तो हमें दे ही रखा है, 18 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 15, 18 माइनस 3 क्या होता है? 15 अपॉन 18 प्लस 4, व्हाट विल बी द आंसर? 22। 217/22 आ रहा है। ये 2 9 जा और ये 2 11 जा, क्या आ रहा है? 135/11। ठीक है, गुड। अब इन सब में देखो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बतानी है। और ये देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये इतना आसान, जितना आसान है ना उतना इम्पोर्टेंट है ये 7th वाला। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, मैं साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बता रही हूँ, आप नोट करते रहना, ठीक है? फाइंड K so that this is in arithmetic progression, ठीक है?
अब 3 टर्म्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और हमें के निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो सेकेंड टर्म आपकी के है, जो मुझे यहाँ कॉमा नहीं नजर आ रहा, ठीक है, कॉमा लगा दिया मैंने। अब के माइनस व्हाट, फर्स्ट टर्म 2/3 माइनस के। मैं एक एक्सप्रेशन लिख के छोड़ रही हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, माउस से थोड़ा सा ऐसे टाइप करना मुश्किल है। ये देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज द डिफरेंस। दिस वुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मैम यस मैम, 813 का वैसे क्लियर लास्ट आंसर क्या था मैम? किसका? मैम 813 आपने कहा था ना फाइंड करने के लिए। ये वाला, इसका Yes, आंसर ma'am. क्या था? इसका मैम मेरा 135/11। 11, यस मैम, मेरा भी यही आ रहा था। ठीक है, गुड। अब इधर आ जाओ, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ओके। तो ये आपके 3 टर्म्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो दैट मींस दिस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ओके। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5/8, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस के। इसको बोथ साइड्स आप सॉल्व कीजिए और के की वैल्यू आ जाएगी। ये क्लियर है? यस मैम। मैम बीच में कॉमा भी है ना? हाँ कॉमा है, ये इसमें था नहीं तो मैंने लगा दिया। ओके ओके मैम। next important formula which we are going to do is the sum of arithmetic progression. sum का formula होता है number of terms upon 2 multiply 2a plus 2n minus 1d। ये यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है। मैम हाँ जी, मैम एग्जांपल नंबर 5 देखना एक बार। हाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार समझा देना। देखो, अगर m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म, ये a आएगा, ये d नहीं है। m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। तो शो करो am प्लस nth टर्म इक्वल टू 0 है। तो यानी कि पहले तो हमने जो हमें कहा गया है उसको लिख लिया, m टाइम्स mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। am क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस m माइनस 1 इंटू डी इंटू m। ये क्लियर है? मैम ये तो क्लियर है। ये क्लियर है ना। फिर उसके बाद सिर्फ ब्रैकेट अंदर से ओपन करके दो बोथ साइड्स को सॉल्व करा हुआ है, ओके ओके। मैम। बस सिर्फ सॉल्व करना है आपको, बोथ साइड्स अपने आप ही आपको ये 0 मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन आपको 0 नजर आएंगे। तो यानी कि आपके जो m प्लस nth टर्म है वो 0 बन जाएगा। Okay, so this I was telling this is a sum of arithmetic progression. This is one formula. There are two formulas for sum of arithmetic progression. One is this and one is this. These are two formulas. अब देखो इस फॉर्मूला में क्या है, आपको n है, आपके पास n है और d है और फर्स्ट टर्म है, 3 चीजें हैं, n और फर्स्ट डी ए, यानी कि डी नहीं गिवन किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आपको नहीं पता वो सीरीज क्या है, तो आपके एल है, दिस इज एल, दिस इज अ लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए प्लस एल इंटू एन माइनस 2। एल इज द लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, लास्ट टर्म, ओके। सो लास्ट टर्म कैसे निकाली जाती है, इस फॉर्मूला से, ए एल इक्वल टू मैम वी कैन से n minus 1 मैम बोलो। वी कैन से L is equal to AN ना। L is equal to an and an is equal to first term plus n minus 1 into d। या मैम ये वही लिखा हुआ है, AN is equal to A plus में N minus 1 होता है मैम, और उसके साथ फुल टू यस। ठीक है,
यस मैम, यस मैम। अगर L क्या है, L आपकी nth टर्म है, ठीक है, ये तो पता लग गया, हमें an भी लिख सकते हैं इसकी L की जगह पे। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया। D इज अ डिफरेंस 1। कितने नंबर्स का हमें सम निकालना है, n का, यानी कि 100 का। 100 तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, यानी कि 100 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। 2a प्लस n माइनस 1d, 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99 इंटू d 1। तो ये आपका आंसर आ गया 5050। सिंपल पुट करके निकाल लिया इसको। तो ये भी सिमिलर एग्जांपल है आपका, सेम तरह का एग्जांपल है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। लेट्स सी समथिंग डिफरेंट हियर, डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये भी सेम है। हाँ जी, एग्जांपल 6 की है। कौन बोल रहा है? अमन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। मैम मैं कह रहा हूँ सेकंड वाला फॉर्मूला भी लग सकता है ना एग्जांपल 6 में। कौन सा एग्जांपल 6 में सेकंड फॉर्मूला? हाँ, लगा के देख लो, ट्राई करो। मैम ये एफ का मतलब सम होता है ना सबका? हाँ जी, मैम एग्जाम्पल 6 का आंसर क्या था मैम? मेरा 5050 आ रहा है। यही है। यही है मैम। हाँ, ओके। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन करते हैं। अगर एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला नंबर 2 है एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 1 2 3 4, और इससे अगली होगी ए प्लस 3d। ओके, फर्स्ट 5 टर्म्स, sum of first 5 terms is equal to 1/4 of sum of next 5 terms, यानी कि पहली 5 टर्म्स तो ये है, is equal to what? These are the next 5 terms, ये next 5 terms है। तो ये क्या कह रहा है? sum of first 5 terms is equal to 1/4 of नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स हमें कैसे मिलेंगी? 10 माइनस S5 करके मिलेंगी ना। पूरी 10 टर्म्स हैं, तो 10 टर्म्स में से अगर मैं नेक्स्ट 5 अगर मुझे निकालनी है, तो फर्स्ट वाली 5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5। कैसे निकलेंगी? 10 में से वो वाली 5 हटा देंगे तो बाकी की 5 मिल जाएंगी। ओके, यस मैम। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। दिस विल बी 5s इक्वल टू S10 एंड सिंपल इसका फॉर्मूला पुट कर। ओके, सो 4s5 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, इक्वल टू S10 माइनस S5, S5, और ये हो जाएगा 3s5, इधर आ जाएगा 3s5 इक्वल टू S10। S10 क्या होगा? जल्दी से बताओ। n/2, 10/2, फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखा है, a2 दे रखा है, s/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 9d, 2a क्या हो जाएगा? 4, 2a 4 हो जाएगा। यस मैम। निकालो इसको, वैल्यूज पुट करो। यहाँ तक तो पहुंच गए ना? यहाँ Yes, तक तो ma'am. पहुंच गए आप सब। और अब Yes, बस ma'am. आपको एक ही वैल्यू इसमें पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। ये आपका वैसे भी 5 हो जाएगा, कट जाएगा तो
इसको ओपन करो ब्रैकेट को, डी आपका -3 है, कितने बच्चों का आया बताओ फटाफट। ये बुक में S10 क्यों ले रखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में, आपने S5 लिया। देखो फर्स्ट 5 टर्म्स तो S5 हो गई ना, नेक्स्ट 5 कैसे पता लगेगी? S6 S7 S8 S9 हुई नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो वो कैसे पता लगेगी अगली 5? S10 में से पहली 5 हटा देंगे तो आपको नेक्स्ट 5 मिल जाएंगी ना। पर यहाँ स्टार्टिंग में S10 ले रखा है जबकि S5 आना चाहिए। S10 निकल आया है, S10 लिया नहीं है, इसको नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए लिया है। नेक्स्ट 5 टर्म्स आपको कैसे मिलेंगी? S10 माइनस S5। ओके, यस मैम। कितने बच्चों का D -3 आ रहा है? A वैसे भी 2 है आपका, तो 6 आना चाहिए, -6। ये 4S10 कैसे आया मैम? हाँ जी 4S10 बेटा, इस इक्वेशन से आया ना, फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यही दिया हुआ ना। ओके 1/4 1/4 4 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, है ना। आप हैंड रेस कीजिए, किस किस को नहीं समझ आया अभी भी। आकाश गुप्ता पूछो। मैम पूरा ही समझ नहीं आया, शुरू से बता दो। मैम शुरू ये से S10 माइनस S5 से समझ नहीं आया। मैं ये बता रही हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि जो आपका जो फर्स्ट 5 टर्म्स वो कह रहा है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट 5 टर्म्स आपकी S5 हो गई, ये तो क्लियर है ना, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, अगली 5, आगे की 5। अब आगे की 5 तो हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म्स हैं। S6 S7 S8 क्या क्या टर्म्स है? A6 A7 A8 A9 A10, और फर्स्ट टर्म्स क्या है? A1 A2 A3 A4 A5। देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा? A1 A2, सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो पता है ना। और Yes, ma'am. अगली 5 कौन सी होंगी? A6 A7 A8 A9 A10, है ना। हाँ जी यस मैम। यस मैम। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो S5 है, और नेक्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है नेक्स्ट 5, अगली 5, अगली 5 कैसे आएंगी? S10 माइनस ये वाली 5, तो आपको आगे की 5 मिल जाएंगी। यस मैम। A6 A7 A8 A9 A10, तो ये इक्वेशन बनाई है इसकी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 को ऊपर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, S5 को इकट्ठा कर लेंगे, इसको इकट्ठा कर लिया। अब समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम जो ये 5 मल्टीप्लाई 10/2 into 2a plus 9d है, तो S10 का फॉर्मूला है मैम, सम ऑफ एंड ये वाला? हाँ जी मैम, ये तो S10 सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। तो यहाँ आप कह रहे हो 5 टाइम्स S5 और यहाँ पे आपने S5 वाला फॉर्मूला लगा दिया इंटू 5 वाला, तो ये उससे आपका D -3a आ गया। अब A आपको पहले से क्वेश्चन में ही 2 दे रखा है, तो -6 आ जाएगा ना ये। ठीक है ये मैम, आगे समझ आया? हाँ जी, अब आगे। ये स्टेप क्लियर हुआ? यस मैम। ये Clear स्टेप के बाद आपको कहा है कि शो करो कि A20 आपका -112 आना चाहिए। शो करो A20th टर्म की वैल्यू -112 है। तो A20th टर्म कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट टर्म hello, ma'am. प्लस व्हाट, वो जो फर्स्ट फॉर्मूला
एपी का बिल्कुल पहला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म प्लस 20th टर्म यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, -6 है, ए क्या है, 2 है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है, तो उसको कैलकुलेट करके आपका -112 आ गया। मैम हाँ जी, यहाँ पे 9D कैसे आया? कहाँ पर, ये ये हाँ यहाँ। बेटा फॉर्मूला नोट करो ना, n-1d नहीं होता यहाँ पे ऊपर, ये यस मैम 1D होता है ना, फर्स्ट फॉर्मूला। पर 9D दे रखा है। n 9 कैसे n आया, का 10 मान 10 माइनस है 1 से ना, 9 नहीं आएगा, n is 10, ओके n का मान 10 है, एक गया तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे, यस मैम। पुट करो ना, लिखो इसको साथ साथ, कैलकुलेट होता चला जाएगा। अब ये देखो, आपका a 20th की वैल्यू निकाल ली, वो -112 आ गई। फर्स्ट वैल्यू हमें 2 दे रखी है और d -6 है, उसको पुट कर दिया, ठीक है। यस मैम ये डी की वैल्यू कैसे निकाल दी इसने? d की वैल्यू कैसे निकाली, इस इक्वेशन से निकाली है, 5 इंटू S5 है ये, इधर S5 की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट फॉर्मूला वाली वैल्यू पुट करो, दोनों साइड्स में सिर्फ d बचेगा और d की वैल्यू -3 है, निकल कर आएगी। अब क्लियर है? मैम ए की वैल्यू तो 2 है ना? हाँ जी, 10 में क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 5 टाइम्स, ऊपर देखो a की वैल्यू 2 ही है और d की वैल्यू -6, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। इस एग्जाम्पल को छोड़ो, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। निकल आई वैल्यू? यस मैम। सी, ये एग्जाम्पल 12 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। And this 14th is important. Let's see these two examples. ये कह रहा है if the sum of nth terms of AP is this, ये आपको सम दे रखा है n की टर्म पे, फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। अब हमें nth टर्म निकालनी है, हमें सम दे रखा है, an निकालना है यानी कि, और an क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। ये एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, दिस इज अनदर फॉर्मूला, that nth term is equal to Sn minus Sn-1। तो अब किसी भी सम के लिए हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए। यस मैम। फर्स्ट टर्म कैसे आती है, n को 0 पुट करके, S0, n को 0 पुट करोगे, इसको 0 पुट करोगे n को, तो S0 आ जाएगा, an क्या होगा, Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है, 2n² प्लस 5n, पुट कर दिया, माइनस Sn-1। Sn-1 में n की जगह पे n-1 हो जाएगा, और वही इक्वेशन वही रहेगी, ये वाली n-1, उससे आपका n की वैल्यू में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये an आ गया आपका। ओके, हेलो।
यस Yes, मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Clear. Okay. Yes, ma'am. Presented. This मैम one 14 मैं हाँ जी हेलो मैम, मैं पूछा था जो हमारा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बुक्स आई क्या? क्या चीज? दोनों बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों के चैप्टर आएंगे पेपर में? यस यस डेफिनेटली सेशन जो पेपर होने वाला है अभी। बिल्कुल आएंगे। ओके मैम सिलेबस नहीं बटे हैं क्या? सिलेबस जो आपकी पीडीएफ में है वही आपका सिलेबस है जो आपको मैंने बताया है ना। बुक 1 हम कर चुके हैं मैट्रिसेस के टॉपिक्स। अब हम बुक 2 कर रहे हैं। मैम ये भी बुक 1 में ही है मैम। ये सेकंड बुक है मैम मैम एक बुक में 2 ब्लॉक है। वॉल्यूम 1 का है। जो भी है आपको सारा आएगा। देयर इज नो चॉइस। 4 ब्लॉक है सिलेबस है वो हमारी पूरी कुछ आता ही तो नहीं है। Next is 14th example. The interior angles of convex polygon is in AP. See, any polygon is given to you. This is a polygon. तो वो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज इन एपी। सब एपी में है इसके एंगल्स और स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि ए दैट इज 120 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री यानी कि बाकी के एंगल क्या क्या होंगे। एक पहला एंगल 120 है, दूसरा 125 होगा, तीसरा 130 होगा, चौथा 140 होगा, 135 होगा, ऐसे करके 5 डिग्री इंक्रीज होता जाएगा। और वो कह रहा है कि 9 साइड्स है पॉलीगन में। n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9। ओके यस and this is a formula for the sum of angles of polygon. किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ये इसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ साइड्स विच इज 9, 9 माइनस 2 7, 7 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, राइट साइड क्लियर है? Yes, ma'am. And this sum is same as this sum of AP because all the sides, all the angles of the polygon are in AP. All the angles are in AP already. So what is the sum of this arithmetic progression series? n upon 2 into 2a यानी कि 2 into 120 that is a plus n minus 1 d and d is 5 given in the question. n minus 1 यानी कि 9 minus 1 8 हो गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करके आपने n की वैल्यू निकाल ली। दैट मीन्स जो आपका पॉलीगन है जब वो 16 का होगा या 9 का होगा, 9 का तो दे ही रखा है, 9 के अगला पॉलीगन कौन सा हो सकता है? 16 का हो सकता है, जिसका सम वही निकलेगा, सेम निकलेगा। ओके बाद में समझ नहीं आया कुछ भी। क्या नहीं समझ आया इसमें? हम इक्वेशन इक्वल रख दी, फिर हम वैल्यू निकालेंगे जिसकी जब हमको n की वैल्यू आ रखी है 9 पता है, हाँ value n की निकालनी वैल्यू थी। 9 और 16 आ गई ना। हाँ जी मैम। अब अच्छा वो हम कह रहा सेकंड है, वैल्यू निकाल रहे हैं, सेकंड कोई हाँ और वो मतलब कह रहा है कितने कि को? शो करो 9 साइड्स निकल के आती है पॉलीगन की। 9 साइड्स ही तो निकल कर आई, हाँ जी 16 मैम। तो पॉसिबल नहीं है। आगे शो कर रहा है कि 16 n की साइड्स मैम 2 हो पॉसिबल जाएगी। नहीं है। हाँ ओके मैम, ओके हम समझ गए, हम समझ गए। भाई 16 हमें तो साइड्स समझ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटीरियर एंगल है पॉलीगन का वो 16 साइड्स में 195 डिग्री निकल कर आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। 180 से बड़ा कोई एंगल हो ही नहीं सकता। मतलब मैं 180 प्रूफ करना था ना इसमें n इक्वल टू 9 प्रूफ करना था हाँ ना। n इक्वल टू 9, वो n इक्वल टू 9 n आ गया ना यहाँ पे। ये तो मैम ये जो क्वाड्रेटिक n माइनस इक्वेशन टू बन गई इंटू ना। 180 डिग्री दे रखा है उसका क्या? क्या चीज? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री दे रखा है उसका क्या यूज?
वो कह रहा यार है वो कि ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स -2 into 180 इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। नवे फॉर्मूला याद रखना होगा, n-2 इक्वल इनटू 180 डिग्री। ये तो सम का फॉर्मूला है ऊपर जो हमने करा। n-2 इनटू 180 डिग्री। हाँ, ये आपको लर्न रखना होगा, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम माइनस माइनस करते हैं, प्लस प्लस डी करते जाते हैं और हमें अगला अगला नंबर मिलता चला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। लेकिन इस केस में हमारे पास अगला नंबर कैसे मिलेगा? नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा एक नंबर आर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच सेकेंड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट विद द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे और हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी, फिर सेकेंड टर्म से वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी। जैसे आप 2 का टेबल देखते हो, 2 4 6 8 ऐसे होता है ना, तो फर्स्ट वाली टर्म में आप 2 मल्टीप्लाई करते हो आपको सेकेंड मिल जाती है, 4 में 2 मल्टीप्लाई करते हो अगली टर्म मिल जाती है, फिर 8 में 2 मल्टीप्लाई करते हो 16 मिल जाता है। ऐसे ही आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज भी चलती है। So how the terms are arranged? First term is A, second term आपकी AR, R is any constant जो आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो। AP कैसा दिखता था? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D ऐसे दिखता था। ये कैसा दिखेगा? ये पावर में इंक्रीज होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये पावर में इंक्रीज हो रहा है। AR स्क्वायर, AR क्यूब, where A is your first term, okay, and R is the common ratio बोलते हैं इसको, okay. Yes ma'am. So nth term of any Graph geometric बता दो। progression is equal to sum R multiply A first. So some of the numbers in GP are this, this and this. इसमें R कैसे निकल कर आएगा? आपको फर्स्ट टर्म अगर -1/3 दी हुई है और सेकंड टर्म -1/9 दिया हुआ है, तो -1/9 अपॉन -1/3 दैट विल बी योर R। आप इसमें से सिंपल देखकर इसको R निकाल सकते हो, क्योंकि दिस अपॉन दिस विल गिव यू R। एनी नंबर विच इज डिवाइडेड सेकेंड, मतलब आगे की टर्म को आप डिवाइड करोगे पिछली टर्म से तो आपको R मिल जाएगा। अब लेट्स सी इसका R क्या निकल कर आता है, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, तो ये माइनस माइनस ये कट गया, ये आएगा आपका 1/3। यानी कि मैं 1/3 मल्टीप्लाई करती चली जा रही थी और मुझे अगला अगला टर्म मिलता चला जा रहा था। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैम मतलब इसमें डिवाइड करके निकालते हैं? इसमें डिवाइड करना है, इसमें जो उसमें कांस्टेंट डी था जो आप ऐड करते चले जा रहे थे, इसमें आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे आर को। हमने आर कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। उसमें डी कैसे निकाला था? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाला था, उसमें माइनस करके निकाला था, इसमें डिवाइड करके निकालना। ओके, हेलो, यस मैम। यस मैम। मैम ये डी सेम रहेगा या अलग अलग? यस मैम। क्या? ये डी सेम रहेगा या अलग जैसे अलग? डी तो थ्रू आउट द सीरीज सेम था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो डी एक ही होता है, सीरीज पे डिपेंड करता है कैसा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। ऐसे ही आर भी सेम रहेगा, दूसरा ऐसे एग्जांपल ही दे रखा है आर उसमें भी अलग अलग। सेम रहेगा। कौन सा एग्जाम्पल? ये दूसरा वाला 2 4 6 खुद करके देखो, कर लिया तभी तो बोल रहा हूँ। क्या अलग आ रहा है? मैम इसमें जो 6 है वो गलत दिखा रहा है, फिर आंसर 6 साइड से हटेगा इधर से। चेक करो आप एक
मैं थोड़ा आगे करवाना चाहूंगी। बुक की गिवन सीरीज को मैं मैम हर पावर तो सीरीज को बनी चेक गई नहीं है। कर सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैम ये तो नहीं है, जीपी में है मैम 6 आ रहा है बीच में। ठीक है। सो ये आपका एक और फॉर्मूला है, प्लीज नोट कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक सीरीज दी हुई है ए आर स्क्वायर, ये आपको सीरीज दी हुई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है सीरीज का, और ए एन अपॉन ए एम का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई द नेक्स्ट नंबर, और इसका जस्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला ए एन अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए आर रेस्ट पावर एन माइनस एम, एन माइनस एम। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सेकंड फॉर्मूला है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, so these formulas are very important. Let's see one question from this side. अगर आपको r निकालना है और and the next 4 terms of geometric progression, ये आपको geometric progression दिया हुआ है, वो कह रहा है नंबर 1 क्वेश्चन की r निकालो और उसके बाद आगे की 4 टर्म्स निकालो। तो r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 अपॉन -3, -1/3 आ गया r, और नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे, 1/9 में हम r मल्टीप्लाई कर देंगे, r क्या है -1/3, 1/9 में हम 1 - 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, we will get the next term, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ एंड एट टर्म ऐसे ही आएगी। अब इसमें भी आप 1/r यानी कि -1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें भी -1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। बोलो अमन सिंह। मैम ये सेकंड वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया, रेशियो ऑफ जीपी वाला। सेकंड वाला भी यूज करेंगे, आई विल एक्सप्लेन, जस्ट नोट इट फॉर्मूला डाउन। कैसे बना? It is saying that if we divide two geometric progressions, first one is of the size n and second one is of the size m, a n upon a m is equal to r raised to power n minus। जो आपको कॉमन रेशियो मिलेगा उसकी पावर में फर्स्ट वाले का साइज माइनस सेकंड वाले का साइज। ओके ओके मैम। आगे चलते हैं 16th एग्जाम्पल पे। ये तो क्लियर है ना एग्जाम्पल ऊपर वाला, ये तो इजी था। मैम हाँ जी, यहाँ पे 1/81 ये तो माइनस में है ना, इसको माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है, बट माइनस में दिया हुआ है। हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो ये साइन की, बस ये आएगा ऐसे ही, पर पहली वाली टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, कहने का मतलब चलेगा ऐसे ही सीरीज, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक है या प्रिंट हाँ, ऐसे हुआ हुआ है, A7 में यहाँ पे डोंट वरी, कहीं कहीं जगह हमें ऐसे मिलेगा कि कहीं यस कहीं जगह मैम, ना, एक -1 प्लस एक -1 प्लस होता जाएगा ये। हाँ क्योंकि ये -1/3 है। प्रिंट हो रखा है। हाँ मिस प्रिंट कहीं कहीं जगह आपको दिखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ध्यान दे रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आप सब ध्यान दे रहे हो इस चीज को। नेक्स्ट दिया हुआ है 12th टर्म निकालो जीपी की, जिसकी 8th टर्म तो 192 है और कॉमन रेशियो आपका 2 है, तो आपको 12th टर्म ये रहा, आप जो फॉर्मूला का वो यूज मांग रहे थे ना, इस फॉर्मूला का क्या यूज है, ए एन अपॉन ए एम, दोनों और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का साइज अलग अलग है, दोनों का टर्म अलग अलग है। A12 अपॉन A8 इज इक्वल टू R रेज टू पावर 12 माइनस 8 विच इज 4, तो R आपका 2 दिया हुआ है, आंसर। और A8 भी आपको दे रखा है 192 मल्टीप्लाई वॉट ये कर देंगे 16, तो ये आ जाएगा। ओके
Let's do 17th example. ऊपर तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक से लाइन स्टेडी हो रही है यहाँ पे, बट अगर आपको कहीं कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. Have a look. You want to ask something? Yes. सुधा कुमारी, आकाश गुप्ता. हाँ जी. ये 50 वाला एक बार और बता दो. कौन सा? एग्जाम्पल 50. 15. ये Yes, वाला आपको आर Yes, निकालना है और अगली 4 टर्म्स निकालनी है एपी की. आर कैसे निकलता है? उसमें डी कैसे निकल रहा था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ये तो याद है ना? यस मैम. इसमें आर कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. उसका उल्टा. हाँ, डिवाइड करेंगे उसमें. सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. -1/3 नहीं आ गया? बोलो. ठीक है मैम. 16. अब -1/3 आ गया तो अगली 4 टर्म्स तो आप निकाल ही सकते हो. इसमें मल्टीप्लाई कर दो -1/3. अगली टर्म जो आई उसमें मल्टीप्लाई कर दो -1/3. ऐसे करते करते आपको 4 टर्म्स मिल जाएंगे. हाँ जी, मल्टीप्लाई करते रहना है, फिर लास्ट में वो जो आंसर आएगा वो. हाँ तो क्योंकि हमारी सीरीज तो ऐसी है ना. AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR. यही है ना. सॉरी, Yes, ma'am. स्क्वायर, फिर आगे एंड सो ऑन. आर की पावर बढ़ती चली जा रही है. ठीक है. दिस इज आवर सीरीज. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 17. Let's do this. 3 numbers are in AP and their sum is 15. Okay, 3 numbers हम AP में लिख लेते हैं जिनका sum 15 है. A minus D, A and A plus D. ये 3 numbers हैं और इनका sum क्या निकल कर आया? 15. If 139 is added to them. ठीक है, पहले ये जो इक्वेशन है इसमें से हमें A मिल जाएगा which is 5. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इक्वेशन रीड करी और उसको एनालाइज कर दिया. यहां तक क्लियर है? ओके. मैम रिपीट कर दिया. क्या रिपीट करूं? 3 नंबर्स अगर एपी में हैं, एपी में नंबर्स कैसे दिखते हैं? A minus D, A और A plus D. इसमें कंफ्यूजन है कोई? मैम अगर A plus D, A plus 2D क्यों नहीं लिया? कर लो, ले लो, वो भी ले सकते हो. तब भी ये आपका 5 आएगा. लेके देख लेना. इट्स गुड कि आपने ये सोचा. इट्स वेरी गुड कि आपने ये सोचा. मतलब आप ले सकते हो A plus D, A plus 2D ले लो. ठीक है, तो इनका सम हमें 15 दे रखा है. तो जब 15 दे रखा है, ना हमें A पता है ना हमें D पता है. वो A इधर उधर, D देखो, D कैंसिल हो गया. 3A = 5 हो गया. A की वैल्यू 5 निकल कर आ गई. ठीक है, ओके. और आगे क्या कह रही है? इफ 1, 3 and 9 आर एडेड टू देम. अगर फर्स्ट टर्म में 1 ऐड कर दे, ये रहा ऐड कर दिया. सेकेंड टर्म में 3 ऐड कर दें, ये कर दिया. थर्ड टर्म में 9 ऐड कर दें, ये कर दिया. तो वो कह रहा है कि वो ये नंबर ना जीपी में हो जाते हैं कन्वर्ट. ये अगर नंबर जीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको फाइंड आउट करो. क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम. यस मैम. इस यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एक बार दोबारा बता दीजिए. See, what I'm saying is, क्या दोबारा बताऊं मैं आपको फिर से? अब ये एक्सप्लेन करूं, एपी बताऊं? क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार.
3 नंबर एपी में है, क्वेश्चन यही है ना, 3 नंबर एपी में गिवन है, तो ये 3 नंबर है और ये एपी में है, और वो कह रहा है इसका सम 15 है, इनको ऐड करो तो 15 निकल कर आता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आपका नाम क्या है? विकास। ठीक है, तो ए आपका 5 आ गया विकास। यस मैम। अब वो आगे क्या कह रहा है, अगर मैं पहले नंबर में 1 ऐड करूं, दूसरे में 3 ऐड करूं, तीसरे में 9 ऐड करूं, तो वो जीपी बन जाएंगे, वो बन ओके जाएंगे, मैम। क्वेश्चन में दिया हुआ बन जाएंगे। तो हमें सिर्फ कंडीशन जो दे रखी है उसको हमें एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है विकास? ओके मैम। तो आपने a माइनस डी, आपका पहला नंबर था, a माइनस डी प्लस 1 कर दिया, a में आपने 3 ऐड कर दिया, और तीसरा नंबर क्या था, a प्लस डी, a प्लस डी में आपने 9 ऐड कर दिया। यही कह रहा है ना करने को? यस मैम। वो कह रहा है कि ये करने के बाद आपके नंबर जो हैं जीपी में हो जाएंगे, ओके मैम। ठीक है? अब जीपी में हो गए, जीपी में क्या होता है, जीपी में तो आर कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहता है। यस मैम। यस डिवाइड मैम। करने से इसमें आता है। एपी में डी कांस्टेंट था, इसमें आर कांस्टेंट है ना? तो क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। ऐसे लिंक्ड है ना जीपी की सीरीज तो। यस मैम। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ये रहा, इज सेम एज थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म ये रहा। समझ आ रहा है? यस मैम। इनको आपने ओपन अप कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर दिया, ए आपको 5 मिल चुका था, ए की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी की फॉर्म में मिल गई। हेलो, ओके मैम। यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई ना डी वाली, ए की तो वैल्यू 5 थी, वो आपने पुट कर दी। अब एक अननोन रह गया हमारे पास विच इज डी। तो डी के आपने फैक्टर बनाइए, तो याद है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। यस मैम। तो 20 कैसे कैसे आता है, 4 इंटू 5 20 होता है, 10 इंटू 2 20 होता है, तो 10 2 लेंगे तो 8 मिल सकता है हमें। यस मैम। 10 माइनस 2, तो ये आपने क्वाड्रेटिक मतलब इसको ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करके इसको ब्रेक कर दिया, डी की 2 वैल्यूज निकल कर आई, -10 और 2, ठीक है? ये क्लियर है? यहाँ तक Yes, पहुंच ma'am. गए सारे? कौन नहीं Yes, पहुंचा, ma'am. किसको बीच में पेन प्रॉब्लम किसी को आ रही हो? यस मैम। ओके, मैम डी वाले पे आ रही है। मैम जो क्या आ आपने रही है? बोला था कि मैम आप ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी लेके कर सकते हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म। हाँ मैंने बोला मैम था, भाई वो कटेंगे अगर हम वो उससे लेंगे नहीं तो वो निकलेगा, आ उससे रहा है, नहीं आ निकलेगा, रहा आई नो दैट, नहीं मैम निकलेगा। क्योंकि डी कटेगा ना, हाँ, इसलिए वो नहीं नहीं ए प्लस रहा डी था। में आ रहा है वो। हाँ यही है, हमारे आप पे लेके डी नहीं है। देखोगे तो आपको समझ आएगा वही कर रहा कि लेकिन कैसे सॉल्यूशन निकले। हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर लेके देखने में बुराई तो नहीं है, आपने ट्राई तो कर लिया ना उसको। अगर 5 ए नंबर प्लस होंगे डी के तो फॉर्म में आ रहा है वो। -2 हाँ से फिर स्टार्ट करना नहीं होगा। निकलेगा। अच्छी बात है कि आपने ट्राई करा उसको, वो भी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, गलत थोड़ी ही है। वो ए प्लस डी के फॉर्म में आ रहा है। इसको लेने का फायदा ये है कि एक वेरिएबल जब हम ऐड करते हैं तो ऐसे करके कैंसिल हो जाता है, उससे कैंसिल हमें आउट हो बहुत, जाएगा। उससे हमें एक ही वेरिएबल में इजी रहता है निकालने में, यस मैम। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप वो भी ले सकते हो, अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको कुछ और भी कुछ गिवन है, डी भी गिवन है, कुछ और गिवन है, तो दैट विल हेल्प यू, बट इसमें और कुछ गिवन नहीं था। a = 5 है,
नाउ आपको डी की मैम वैल्यूज चलो मिल गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। बोलो। मैम यहाँ पर डी स्क्वायर है और प्लस 8d है। मैम एक फैक्टराइजेशन डी कहाँ मेथड से गया? आपको ब्रेक करना आता है इक्वेशन? नो मैम भूल गए। आपका नाम? सोहित। मोहित। सोहित। डी स्क्वायर, देखो 20 के वो क्या बनते हैं फैक्टर्स? 20 आपको कैसे मिलता है? 4 × 5 करके मिलता है, 10 × 2। 10 × 2 करके मिलता है। अब 10 और 2 का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मैं इनको प्लस माइनस कुछ करूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जी कर मैम। देंगे ना, मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। जी ठीक है, तो आपको क्या आया? 10d -2, मैं 2d 8d को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना? हाँ, यस। तो अब मैंने d इसको इकट्ठा कर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, इसको ओपन अप कर दिया ब्रैकेट को, d कॉमन निकाल लिया, एक में मेरे पास d -10 हो गया और एक में मेरे पास -2 को कॉमन लेके d सेट कर लो, रुक जाएगी फिर चलेगी। 10 आएगा, वो d + 10 10 आएगा। d + 10 इसको ओपन अप कर दो ना, d + 10 आएगा। 10 मैंने -2 ओपन अप करके। करने के बाद d स्क्वायर में से d आएगा और +10 d में से 10 आएगा प्लस। तो ये प्लस है ना? यस मैम। तो d + 10 एंड d -2 d -2 एंड d की वैल्यू 2 और इक्वल टू 0 करके इक्वेट करते हैं, इसको 0 करके इक्वेट करते हैं। ओके, तो आपको d एक तो -2 मिला, सॉरी 2 मिला और एक -10 मिला। तो अब d की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। अब d की दोनों वैल्यूज लेकर आप ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो। ये d = -10 लेके निकाल के देखी और एक 2 निकाल कर देखी हमने। तो यानी कि हमारी दो पॉसिबिलिटी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एक ये और एक ये। ओके, हाँ तो मैम दोनों से निकाल सकते हैं नंबर, कहीं ऐसा तो नहीं एक से ही निकालना पड़ता? नहीं नहीं, दोनों से निकालेंगे क्योंकि ओके। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसे कि इसमें ए की वैल्यू कुछ गलत हमें लगता है कि आ रही है या ऐसे कुछ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एक वैल्यू हम इग्नोर कर रहे हैं और दूसरी ले रहे हैं, बट इसमें दोनों ही आ रही है। ओके, हेलो, चलो आगे फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसको आपको देती हूँ करने के लिए। अच्छा, डिटरमाइन, ये करते हैं 18th टर्म ऑफ जीपी, ए 18 निकालो। डिटरमाइन दिस, whose fifth term is 1, फिफ्थ टर्म आपकी 1 है एंड कॉमन रेशियो इज 2/3। Do you know how to find? A into R की 18 power 4। डिवाइड बाय 5 हम्म, फॉर्मूला से हो जाएगा मैम। = में ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? r हो जाएगा हमारा 13 और कॉमन रेशियो हमारा दे रखा है 2। A 6th term is equal to A 5 × 2/3, तो ये आपका 2/3 आ गई। और A 4th टर्म कैसे आई? 3/2, पिछली टर्म
3/2 सॉरी 2/3 निकालो 18th टर्म फटाफट। so is 2/3 raised to power 13। हाँ यस मैम यही आ गया 18th टर्म। पूरा इसका सॉल्यूशन करना है। नहीं ठीक है, आपने निकाल लिया तो दैट्स फाइन। ओके नेक्स्ट आई एम कमिंग टू सम ऑफ जीपी। जैसे हमने सम ऑफ एपी किया था ऐसी सम ऑफ जीपी है एंड दिस इज अ फॉर्मूला, प्लीज नोट इट डाउन। और ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है। ओके फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी। 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो यानी कि n is 20। ओके एंड फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a is 128, सेकेंड टर्म AR is -96। तो AR और A में से आपने R निकाल लिया। R कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। R आपका आया -3/4 और सम का फॉर्मूला क्या होता है? A यानी कि 128 मल्टीप्लाई 1 माइनस R रेस्ट पावर n -3/4 रेस्ट पावर 20 अपॉन 1 माइनस R यानी कि 1 माइनस -3/4। ओके इसको आप एज इट इज लिख के भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये सॉल्व तो होगा नहीं। इट इज वेरी बिग वैल्यू इज वेरी बिग। तो रेस्ट पावर 20 करते करते तो ये आप एक्सपोनेंट से ही सॉर्ट आउट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द वैल्यू ऑफ 20। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैम इतने से ही पूरे नंबर मिलेंगे हमें? नहीं, ये एक फॉर्मूला एप्लीकेशन है सिर्फ, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं आता इस तरह। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जैसे आप फॉर्मूला को कैसे इसको अप्लाई करो, क्या क्या गिवन है वो देखना है। जो भी आपको गिवन है उसको देखकर आप कैसे कर सकते हो इसको, अप्रोच क्या होनी चाहिए, दैट्स इट। फर्स्ट ये दो आपके फॉर्मूलाज हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चंस, उसमें भी यही सब अप्लाई होगा। लेट्स सी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। ये आपकी जीपी है, वो कह रहा है कि इसमें कितनी टर्म्स का जो सम है वो ये निकल कर आएगा। सम तो दे रखा है, एन नहीं पता हमें कि कितनी टर्म्स का सम हमें एन ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। आर हमें कैसे पता लगा? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म से। आर क्या है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 3/√3। तो इन दोनों को अगर हम काटें तो √3 बचता है ना आर। ये कितने बच्चों को पता है? ऐसे करते हैं। मेरे को पता है। गुड। ये या तो आप हाँ √3 into √3 हाँ √3 that is 3 हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जब कट क्योंकि 3 होता है √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर। हाँ तो जब आप एक को कैंसिल कर दोगे तो एक बच जाएगा ना। आर आ गया अब हमारे पास। ए आर हमें पता है, ए हमें पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, आर भी पता है, ये भी पता है। अब और हमें सम भी पता है कि सम ऑफ द फर्स्ट सम n टर्म्स ऑफ जीपी इज समथिंग लाइक दिस। तो लेकिन कितनी टर्म्स को ऐड करेंगे ये नहीं मालूम, ये नहीं दिया हुआ। तो a इंटू आर माइनस 1 आर एन -1 अपॉन r -1। तो आपका a क्या है?
√3 है इंटू Rn, यानी कि √3 रेस्ट पावर n -1 अपॉन √3 -1, ये है ना। ओके, इसको कर दो रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज क्या करते हैं, नीचे जब डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर पड़ा होता है तो उसका साइन बदलकर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या मिलेगा हमें? भैया दोज के अभी तक भगोने रखे नहीं है, किसी दिन ना तू कुटेगा। नेक्स्ट वन इज a minus b into a plus b, which is a square minus b square, यानी कि √3 का स्क्वायर -1, which will be 2. This will be 2 here. ठीक है, हेलो यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन समझाना दोबारा, ये एट टू क्या क्या क्वेश्चन समझाना, आप रीड करो क्वेश्चन। चलो, कौन बोल रहा है ये? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी √3 does the rest add up to 39 plus 13 √3? हाँ जी, क्या मीनिंग है बताओ? मैम ये तो ये 39 जीपी दे रखी है, फिर उसके बाद एड अप टू इतना कुछ, ये सब मतलब ये क्या दे रखा है, क्या इसमें प्लस करना है, क्या करना है? हाउ मेनी क्या होता है? हम कितनी, हाँ, तो कितनी टर्म्स का सम का एडिशन ये निकल कर आएगा। अच्छा मैम एन ढूंढना है इसमें। अच्छा, कितनी टर्म्स का एन है ये? जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आई विल जस्ट पुट द पर्सन इन द वेटिंग रूम देन। समझ आ गया मैम। ठीक है, मैम गुड। हाँ जी, ये ए और 3 क्या दे रखा है? क्या मतलब? AR हाँ वो है ना, हाँ ये नहीं, इसके पहले ए आर इज इक्वल टू 3। निकालो, AR क्या आता है? हमारी सेकंड टर्म दी हुई है ना, बोलो। ये तो हमारी सेकंड टर्म दी हुई है ना। फर्स्ट टर्म हमारी √3 सेकंड है, टर्म A, डिवाइड बाय फर्स्ट और टर्म, आपका हाँ, R आ जाएगा, और क्या और आएगा? AR हमारी सेकंड टर्म है, वो 3 है। AR स्क्वायर हमारी 3√3 है, थर्ड टर्म, वो तो गिवन है। गिवन चीजें पूछ रहे हो आप क्वेश्चन में से। मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन में आपको जो जीपी है, फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, आर आपका सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है ना? ये क्लास आज ओवर है, ठीक है? आप सब म्यूजिक एंजॉय कीजिए, क्लास इज ओवर। बंद कर दो यार। मैम ये पीयूष कल भी सॉन्ग बजा रहा था मैम। एक के कारण हम सब नहीं पढ़ पा रहे। बताओ यार, कोई भी आके कोई म्यूजिक बजा जाता है, कोई क्या करता नहीं, दिस पर्सन विल नॉट बी अलाउड इन द नेक्स्ट क्लास टू एंटर। लेट हिम मिस 1 or 2 क्लासेस देन। गाने बजाया स्टैंड कर दो। मैम एक डाउट है, ये जो आपने एग्जांपल समझाए हैं, इसमें एक क्वेश्चन में तो आपने 1 माइनस आर की पावर एन कर रखा है, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन कराया था उसमें आर की पावर एन माइनस 1 है। ये कैसे पता चलेगा कब आर की पावर एन माइनस 1 ले, कब 1 माइनस आर की पावर एन ले? सम बोला हो भाई, वो हमने नीचे ऊपर दोनों माइनस कॉमन निकाल लिया, कॉमन से कॉमन कट गया है, वो माइनस माइनस। ओके, Just a minute, my mouse is not working.
ठीक है, मैम जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे हम सेम बुक में ऐसे ही आएंगे सेम क्वेश्चन? बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। अब आपको ये वैल्यूज कंपेयर करनी है क्योंकि आपको ये सम दे रखा है इसमें राइट साइड में। स्क्रीन नहीं आ रही पता नहीं क्यों। रुक जाओ भाई, अभी देंगे मैम। मैम क्लास नहीं होगी क्या अब? हो तो रही है, कहाँ पढ़ा रही है मैम? अभी ये क्लास तो चलने दो। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। मैम मेरा फोन भी हैंग हो रहा है। See the next one. Example 20th. Find the sum of series. Series is already given. ये आपके ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक सीरीज का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर, एडिंग 199। इसका सम निकालना है, सम ऑफ दिस सीरीज का। तो सम ऑफ सीरीज का एग्जांपल ऊपर हमने सम देखा है, ये वाला। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला हियर। हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है इसकी, लेकिन सिंपल हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। मैम यस मैम इसमें जैसे कि लिखा नहीं है कि इसे ज्योमेट्री प्रोसेस से करना है या उससे करना है, तो ये इसी कैसे से पता करना है, लगेगा? इसी से करना भाई है, एक दो क्वेश्चन याद रखने पड़ते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते इसी से हैं। करना है। अमन सिंह आप बीच में मत बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मतलब याद करना पड़ेगा ये? आपको फॉर्मूला याद रखना है। नो मैम, अब आप मतलब पहचानोगे कैसे कि अरिथमेटिक जी प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? आप ये आपका क्वेश्चन ये है ना, जी मैम। ये प्रैक्टिस से आएगा। इसका जवाब सिर्फ यही है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये आपको फॉर्मूला टिप्स पे होंगे और प्रैक्टिस होगी, यू विल बी एबल टू Okay. Next is 21st question. This is important one. It is saying the sum of first 3 GP is 38. पहले 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का जो सम है that is 38. That means A by R plus A plus AR. This is equal to 38. जब भी हमें कोई भी 3 नंबर्स लेने को कहा जाता है AP या फिर GP में, तो AP में क्या होता है, A माइनस डी, A और A प्लस डी, 3 नंबर्स लेते हैं। और इसमें A बाय R, A और AR लेते हैं। ले तो हम वो भी सकते हैं, A, AR और A स्क्वायर भी ले सकते हैं, AR स्क्वायर भी ले सकते हैं, बट वी प्रेफर दिस वे बिकॉज कई बार हमारे पास ये जो मल्टीप्लीकेशन में अगर आ जाए तो R और R इजिली कैंसिल करके आप A की वैल्यू इसमें निकाल सकते हो। दैट इज वाई वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज टर्म्स। अगर हमें सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ GP 38 दे रखा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 1728 निकल कर आता है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, A क्यूब आपका 1728 आ गया और दिस इज अ क्यूब ऑफ 12, तो क्यूब ऑफ 12 यानी कि A आपका 12 आ गया। इसमें A को 12 पुट करो तो R आ जाएगा which is 6 by 13. Okay, 13 by 6 ये जो आ रहा है, this is your R. Okay, so now it is saying to find the numbers. फिर तो easy है find करना नंबर्स, A by R, A और AR निकालना है हमें।
ए और आर मिल गया तो आपको ए बाय आर भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा और ए आर भी मिल जाएगा। ओके, अब ये वाली जो सीरीज है एग्जाम्पल 22, दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, इसमें कोई nth टर्म नहीं है। तो इनफाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल का फॉर्मूला ये हमने किया हुआ है, इफ आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इनफाइनाइट इन नंबर, यानी कि कहीं पे भी हमारी सीरीज एंड नहीं हो रही, यानी कि an नहीं है हमारे पास, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है 1 है, r क्या है दिस अपॉन दिस विच इज 3 माइनस 1 बाय 3, दिस अपॉन दिस माइनस 1 बाय 3 इज r, तो 1 माइनस माइनस 1 बाय 3, ये आपका आ गया इनफाइनाइट सीरीज का सम। ओके, same is example 23 also. Okay. Okay, ma'am. This is our next topic, which is arithmetic geometric progression. यानी कि ये जो सीरीज है ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, अरिथमेटिक का भी और ज्योमेट्रिक का भी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और हमारी सीरीज कैसी दिखती है, ए बी ए प्लस डी इंटू बी आर, मतलब हमने दो टर्म्स ले ली, एक टर्म हमारी जो पहली वाली है वो एपी में चल रही है और दूसरी वाली जो बी टर्म है वो हमारी जीपी में चल रही है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स, एग्जांपल से हम ये फॉर्मूलाज कर लेंगे। लेट्स सी, आई विल कम बैक टू द फॉर्मूला व्हेन आई विल सी एन एग्जांपल। सपोज एग्जांपल ऑफ दिस सीरीज दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 1 फर्स्ट टर्म, डी क्या है, डी कैसे पता लगेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए और बी आपका 1 है, 1 1 है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म आपकी 1 है। ओके, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, तो इसमें a इंटू बी क्या है, 4/5 में a इंटू बी क्या है, a आपका 4 है और b आपका 1/5 है। तो b पहले 1 था और ये अब 1/5 है, a पहले 1 था और अब a 4 है, तो d तो हमारा 3 निकल कर आ गया, 4 - 1 विच इज 3, और r हमारा 1/5 निकल कर आ गया। ओके, अब हमें सम ऑफ दिस सीरीज बतानी है। अब हमें साफ दिख रहा है ये सीरीज कहीं पे भी एंड नहीं हो रही, इन्फिनिटी वाली है, इन्फिनिटी वाली सीरीज है। तो इन्फिनिटी वाली सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, इफ एज n टेंड्स टू 0, ये वाला, इसमें तो nth टर्म आपका डिफाइंड है और ये आपका इनफाइनाइट वाला, ठीक है। तो एज इसमें क्या आएगा, 1 अपॉन Sn, Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/5, ए बी क्या है 1 1 था, 1 माइनस 1/5, आर हमारा 1/5 था, प्लस 3 इंटू मतलब बी डी आर, डी हमारा 3 है, बी 1 है और आर क्या है 1/5, बी डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये आएगा इस तरह से एक्सप्रेशन ही, बट वी नो हाउ टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एजीपी सीरीज का सम। ओके, ये भी सेम एग्जांपल है। दिस वाज योर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन ज्यादातर जीपी या एपी के ही आते हैं और एक आध कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी आ जाता है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है ये देख लेते हैं। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जीपी, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऑपोजिट ऑफ जीपी है। पहले हमारा जीपी कैसे लिखा हुआ था, ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे लिखा हुआ था ना, 1/a ऐसे करके लिखा था,
उसमें r सेम था, इसमें 1/r सेम, 1/a1, 1/a2, 1 मतलब just the reciprocal of whatever we had in geometric progression. That is our harmonic progression. Okay, formula is just the same as AP. Formula is just same, one formula इसमें बस, और कोई formula है ही नहीं. ओके ये सब कुछ नया है इसमें, ये सब इंडक्शन के क्वेश्चंस हैं, इसमें इंडक्शन से आते हैं ये वाले क्वेश्चंस. ओके यस सुधा कुमारी. बोलो. मैम ये वाला अभी समझ नहीं आया. इसमें एक ही फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिखाया था अभी. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है. अब दिख रही है? यस यस. कहाँ पे पूछ रहे हो फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला पूछ रहे हार्मोनिक हो? प्रोग्रेशन. यस यस. हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आपको 8 10th टर्म ऑफ एपी निकालना है, इसमें सिर्फ 10th टर्म बोला है निकालने को. हार्मोनिक प्रोग्रेशन जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाटएवर नंबर्स आर गिवन. दीज आर जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, इसका कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है. ओके. ये रेसिप्रोकल हो जाता है. 10th टर्म कैसे निकालते हैं एपी में? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, वो आपका 39 आ गया, 1/39 हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके. ये सिर्फ जनरल फॉर्मेशन दी हुई है. हाउ these are the 3 बेसिक फॉर्मूलाज जो वैसे पता होने चाहिए, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी. ये देखिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ये आपको फॉर्मूला जस्ट जनरल पता होना चाहिए. इसका आता नहीं है क्वेश्चन, ये वाले नहीं आएंगे. मेन तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थे जो मैंने आपके साथ आज फिनिश करे हैं. ओके ठीक है. just a minute, I'm taking out the next chapter. म्यूट कीजिए अपना, बैकग्राउंड से कोई वॉइस नहीं आनी चाहिए, किसी के भी बैकग्राउंड से. See, this is a quadratic equation chapter. This is your unit number 3. How to solve equations, quadratic equations, cubic equations, biquadratic equations. अब हम ये सब देखेंगे, how to solve it. Let me open so that I can change it.
I hope it's visible to all. Is it visible? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Now we will solve the quadratic equations. How quadratic equations look like? कैसी होती हैं? इसकी जो डिग्री होती है, that means the highest power of x in the equation is considered as a degree of equation. और उस डिग्री को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है that is quadratic, biquadratic, cubic, कैसी इक्वेशन है हमारे पास. Okay. So this is a quadratic equation जिसमें maximum power 2 होती है x की. So this is a normal equation, ax square plus bx plus c. It is written in this form equal to 0. This is a standard form of quadratic equation. अब इसको solve कैसे किया जाता है? How to solve it? We find out the discriminant. आपको याद है discriminant कैसे निकालते हैं unique solution find करने के लिए? Do you remember? Yes, ma'am. How to find the discriminant is b square minus 4ac. ये जो b है b square minus 4ac. This is the way we find discriminant. Okay. And how to find the roots of any quadratic equation? Roots निकालने का फॉर्मूला होता है ये minus b plus under root of d. ये d भी बोल सकते हैं. x1 हमें हमारा पहला रूट को हम अल्फा बीटा से भी डिनोट करते हैं, x1 x2 से भी कर सकते हैं. x को सिंपल हम लोग माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, ये हमारा d ही तो है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते हैं. ठीक है. दिस इज हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, is it clear? हमारा डिस्क्रिमिनेंट आता है नॉन जीरो, तो ही हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और हमारे रूट्स यूनिक होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज हाउ टू कंप्लीट अ स्क्वायर. सपोज हमें आधी इक्वेशन दी हुई है और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी इक्वेशन का, तो क्या करते हैं? ऐड 1/2. ये हम करके देखेंगे. इसका स्टेप ऐसे मत कीजिए, ये वाले स्टेप साइड में अभी रख देते हैं. आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट देखिए अभी. हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे निकालते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम वो देखेंगे. So this is a discriminant formula and this is a formula for finding roots. ठीक है. इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, ये डेरिवेशन दी हुई है. See, this is an important thing. Properties of discriminant. If we have a quadratic equation b square minus 4ac, this is a discriminant. Okay, so अगर हमारा discriminant 0 है, तो यानी कि हमारे दोनों रूट्स बराबर हैं. दोनों रूट्स बराबर है तो एक ही रूट एग्जिस्ट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जो रियल है. ओके. और अगर ये नेगेटिव निकल कर आता है, कोई -6 या -7 -14 ऐसे कुछ निकल आता है, तो हमारे जो दो रूट्स निकल कर आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे. ओके. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ये तीन चीजें रिमेम्बर करना जरूरी है इसमें. अगर 0 है तो एक रूट है, ग्रेटर देन 0 है तो दो डिफरेंट रूट्स हैं, और अगर माइनस में है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स. ओके. इज इट क्लियर? Let's solve one question.
सी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमेशा कैसे फॉर्म में ऊपर देखी थी हमने, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में देखी थी, ठीक है। और उसके रूट्स हमारे आए अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आर द टू रूट्स ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अल्फा बीटा दो ही रूट्स निकलेंगे इसके, क्यों? क्योंकि हमारा जो x की पावर डिग्री जो है वो 2 है। जो भी x की पावर होती है मैक्सिमम, उतने ही रूट्स निकल कर आते हैं इक्वेशन में। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सब कुछ जो भी बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ रूट्स दे रखे हैं और इक्वेशन नहीं दे रखी, कई बार ऐसे भी होगा इक्वेशन आपको नहीं दी हुई, आपको इक्वेशन निकालनी है और रूट्स आपको ओके। अल्फा बीटा अगर आपको रूट्स दे रखे हैं, उससे आपको अगर इक्वेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स आपके होते हैं -b/a और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं c/a, ठीक है। whenever thus we have to find out the sum of roots, that is equal to -b/a and alpha into beta is c/a. This is the way we can find out the quadratic equation if root is given to us. और हमारी जो इक्वेशन बनती है वो कैसी बनती है? x² माइनस, ये आपका फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिए। अल्फा बीटा आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, तो आप अल्फा बीटा का सम निकालोगे, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकालोगे और सम को यहाँ रखोगे माइनस के आगे और प्रोडक्ट को प्लस के आगे रखोगे। दिस विल बी योर इक्वेशन, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अल्फा बीटा अगर गिवन है और इक्वेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करके रखिए, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट क्लास। आप सबने नोट कर लिया इसको, फॉर्मूलाज को? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पेज नंबर 62। और जिसके आपके पास बुक नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम, पीडीएफ वर्जन इज देयर, इट इज, यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड स्टडी एनी टाइम, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट स्टॉप प्रैक्टिस, क्योंकि क्लास अगर 2-3 दिन बाद भी हो रही है, प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, कितने क्वेश्चंस कर पाओगे। मैम एग्जाम कब होंगे? एग्जाम आपको पता लग जाएगा। मैम डेटशीट तो आ गई है। हाँ जी, बताइए मुझे। डेटशीट आ गई मैम। हाँ, तो आप सोच ली, आप देख लीजिए, मतलब एग्जाम आर नियर बाय ओनली, सो जो मैं करवाती जा रही हूँ उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए। जो गिवन क्वेश्चन है उसी को कर लेंगे, तब भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं क्लास में आपको सब कुछ समझा ही रही हूँ धीरे धीरे।